Assalamu alaikum everyone. Good morning to the speakers and good afternoon to my teachers and students. I am Afrin Tabassum Musa, the principal of Nilofar High School. So Nilofar High School was established in the year 1989. Initially, we have started as a very small school with primary section with around 50 students. Now we are around 500 students with 30 staff. NHS, being a minority institution, supports and guides Muslim community in every possible way by providing 50% of the students free education and 30% of the students free concession depending on their background and financial crisis. We also include, for Muslim community, we also include a subject called Understand Quran and Namaz so as to guide the students to be on the right path. And also, we also conduct different programs in whatever way possible to guide the students to be successful in life also and also hereafter. The management of Nilofar High School is thankful to Mr. Bashiruddin, General Manager of CSA, for arranging this program in our school to guide the students. So it is an honor to conduct this program in our school. So I welcome the guest speaker, Dr. Yusuf Mullah, Mr. Abdul Khadir, and Mr. Muhammad Saeed. It is a great initiative by CSA to motivate the students to create awareness among the Muslim students to appear for UPSC. Yeah, okay. Thank you, ma'am. Thank you for your introduction about the school. Nilofar High School, it is at Nampalli. Even though the area is not up to the mark, they are trying their level best to encourage the Muslim community particularly. And at the same time, when I visited Green Valley High School, Karwan, they also struggling a lot, and most of the students were not showing interest towards civil services. But I request Madam Fatima Sultana to force them because it is new thing. Until unless they taste it, they will not follow it. So I am happy that Madam Fatima Sultana was able to convince them and they are joining this webinar. I welcome Mrs. Fatima Sultana, in charge of Green Valley High School, Karwan, to introduce about the organization to our guest speakers from the world. Over to you, ma'am. The speakers and Assalamu alaikum and good afternoon to my dear colleagues and Bashir Ahmed sir. Myself Fatima Sultana, in charge of Dream Valley High School, Karwan. Before I start, I want to thanks to the Civil Service Academy who has given me a platform to say something about our institution. Dream Valley High School was formed by Mrs. Zainab Begum under the banner of Dream Valley Education and Welfare Society. With school motto enlightening the candle of knowledge in every ignorant heart and also enlight lives through better moral values. It was established in the year 2001 with the aim to illiteracy to its maximum extent and to included the importance of education in the lives and to produce citizens with great intellect who can earn privilege for themselves and for the nation. From the beginning, we strive to maintain high quality education in the scientific as well as Dini Talim. It is widely acknowledged that education has an important role to achieve a greater degree of social justice, but a large number of children are deprived from it. In our country, due to the weak policies and manner, meager help from our society. Dream Valley society always work toward the society who are economically backward and who are deprived from the education.
which is the fundamental rights of every citizen. We are serving more than 250 students from nearly by some slums whose economic status is very weak, and most of them couldn't clear their fees on time, and we do consider them due to their economic situation. Instead of nominal fee structure, we are giving concessions to the students whose parents can't bear their expense. Total 17 teachers and non-teachers staffs is the part of our organization who is also from hand-to-mouth background with no other source rather than their salaries. Previously, we managed our expenses, but due to this pandemic, COVID-19 pandemic, we are facing a number of problems which impacting our confidence and our school motto too. I appreciate the work done by the FISM Trust during the pandemic, who's issued the food packages to the staff irrespective or their caste and creed. I appeal to the NGOs and responsible to come forward for the helping hand to the needy in the fields of education. Last, I want to say the hadith of our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A father gave his child nothing better than a good education. Thank you. Thank you very much. Very nicely Thank you. presented. Thank you Alhamdulillah. very much. And I'll appreciate, I think this is Nilofer High School, I think. The girls, those who are sitting, are from Nilofer High School, ma'am. Which school they are? Nilafar High School only. Okay, okay, good, very. I am requesting 1 second the principals to take some snaps so that we can send our international groups that how they are struggling. Even though they are struggling, they don't have the capacity to purchase smartphones. Just on the request and suggestions of the principals, they're motivated by the principals and they are sitting and they are trying to get some official, good knowledge from the speakers. I remember one line here, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. बेटा जैसे भी हो, जहां भी हो, आपके अंदर जो जज्बा है, जो कुछ करके दिखाने की जो हिम्मत है, अंदर से जो आई है, हम कहाँ बैठे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई मायने नहीं रखता वो, बल्कि हमारे अंदर जो जज्बा है उसको कभी भी हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते. I appreciate all the children, those who are showing their confidence that we will also win one day. We don't mind. I don't mind if I have sit on the floor of school. I want an education and I am afraid of no one. Education is the power terrorists fear most. These are the lines by Malala Yousafzai. I dedicate these lines to these children, those who are sitting and eagerly awaiting to listen our honorable guest speakers from different world and the best speakers of the India. We chosen them particularly for you to motivate them. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Muhammad Bashir Ahmed. Anyhow, I request before we start the program, Muhammad Akbar Khan to recite Qiraat Quran. Over to you, Muhammad Akbar Khan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه
كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. MashaAllah. बहुत खूब बेटा. You presented very well. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, and my dearest students, you have been listening. Muhammad Akbar Khan. He presented very well. God bless him. Allah हर उनकी जो भी ख्वाहिश है पूरी करें, जिंदगी खुशी से भर दें, इंशाल्लाह. Assalamu alaikum and a very good afternoon. The managements of Nilofar High School, Nampally and Green Valley High School, Karwan, principals, vice principals, supervisors, staff, student and parents and the well-wishers of CSA, that is Civil Service Academy, Hyderabad, and as well as these both schools. I, Muhammad Bashir Ahmed, General Manager of Civil Service Academy, welcome you. And I welcome Mr. Muhammad Saiduddin Sahab from Saudi Arabia, by profession, who is an electrical engineer, settled long back in Jeddah and inspiration for many organizations who work for the benefits of the society and student welfare and student community. He is the Honorable Founder and President of Civil Service Academy, Hyderabad, and we are implementing his ideology of spreading awareness about civil services at different levels of education institutions in India. I welcome Engineer Saiduddin Sahab to your hometown in a different form, different phase. I welcome you, sir. Said, sir. Thank you. Thank you. Thank you. I welcome Dr. Yusuf Mullah, today's motivational speaker. Just now he was attending some international webinar, but I requested him that he's supposed to address these children because I like these children very much compared to, of course, Alhamdulillah, all children are equal for us. We conducted even the Springfields to international schools, but these are the struggling generation. These are the struggling generation. If we show at least a way to them, they will become something
in future. I'm very much confident. That's why I called the international personality to address this today's gathering. I welcome Dr. Yusuf Mullah Sahab, the man of honor and respect. If we talk about his degrees and experiences, we supposed to conduct one more webinar. He completed, Alhamdulillah, his MCOM, PhD, LLB, CA, IIB, and president of Nizam, the NGO managing trust, and his HW Trust, Chairman Telangana Chamber of Trade and Industries Promotion, and many more like ex-GM RBI, NABARD, ex-Director Finance, ICM, ex-Secretary, FABC, and ladies and gentlemen, we are very honored to have this gentleman, respected personality, today with us, who worked our ex-Prime Minister, Manmohan Singh Sahab, the Prime Minister of India. You worked along with him. I welcome you, Dr. Yusuf Mullah Sahab. I welcome all the eminent educationists of Hyderabad city, settled in different countries of the world, who are joining this webinar, and they are the strong pillars of Muslim education system of our country, that is India. I welcome you, gentlemen, students, and the managements of the schools, and respected gentlemen. Civil Service Academy is a non-profit, non-political education organization. It is a platform to create awareness regarding the importance of civil services among the students, parents, and in the community in general, and where mental potential of the youth is guided to blossom from amateur to professional level. Muhammad Saiduddin Sahab and his like-minded friends like Mr. Kareem Irfan Kuwait, Abdul Khadir Sahab KSA, Engineer Abu Bakr Sahab KSA, and Mr. Afsar Fahim Sahab from Sudan, all working abroad, started the CSA at Hyderabad on 15th August 2020. CSA is a platform which is dedicated to develop curiosity and zeal in the students to join civil services and become IAS, IPS, IFS officers and serve the nation and contribute their best talents to nation building. Without taking much time, I am happy and honored to welcome Dr. Mullah to address the two organizations by his strong motivation words. Over to Dr. Yusuf Mullah. Sir. Thank you, Bashir Ahmad Sahab. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam. My respects to all the organizers of this pious institution, that is CSA, and the captain, Mr. Bashir Ahmad Sahab, and the participant schools, principals, students, and children. And thank you very much for inviting me to share a few words with you about motivation. Alhamdulillah, today I have heard the welcome Qiraat recited by one of the students. Akbar Khan, Muhammad Akbar Khan. Yes, Muhammad Akbar Khan. It is a wonderful supplication, that is a dua. Perhaps had it been followed by Urdu translation, it should have been understood its own importance. Coming back to our subject proper, Bashir Ahmad Sahab, he has opened this today's meeting with a couplet, that is, to reach the manzil, one should not sit in house and all. वो गुमराह वो है जो घर में बैठे हैं. तो उसके लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए घर दरिया समंदर तलाश कर. Equally, Wordsworth has said, he said
the woods are dark and deep, but I have promises to keep. Miles and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. What is mean is हरकत में बरकत है. One should not lie idle, stand still. तू अभी रह गुजर में है, खैदे मुकाम से गुजर. तू अभी रह गुजर में है, खैदे मुकाम से गुजर. मिस्रो हिजाज से गुजर, फारस व शाम से गुजर. The meaning thereby is, still you are a traveler. हम मुसाफिर हैं. You should not confine yourself to a house. You should continue your journey. Where to go? Misro Hijaz se guzar. Misr means Egypt. Hijaz means Arabia. Faris व शाम से गुजर. Faris means Iran. Sham means Syria. That means what he says is, poet, don't lie or confine yourself in one particular area or a place. You have got a wide world to see. So these are all the inspirations which we derive by motivation that should be actually coming from the schools. It is a very good exercise. I appreciate that commencing this type of motivation starting from the school level. Generally, what happens for students, you ask, what they will say, what is your future plan? He'll say either doctor or he'll say either engineer. Very good. These professions are, they are professions, and it's got its own importance. But nobody will say that I want to become king. Very few will say perhaps administrator. Is it not? All professionals are under the shadow of administrator only. This civil services examination exactly conveys you the position of an administrator. Today, we are seeing in all our various organizations, they are headed by civil services administrators. Particularly, our community, minorities, we are lagging in this, because when we go to school or college and all that, we aim to get a professional degree and go abroad. Leaving this country at the mercy of those who are actually not taking care of the interest of the minorities. Am I clear? In the sense, if our people, that is our community, is occupied with, actually they have saddled with so many administrative posts, our community's growth and our economic conditions and all that, that could have been in a different shape. You see, government has appointed number of commissions. Last, that one was Sachar Commission. Sachar report says minority communities, particularly Muslims, they are, even their condition is worse than the scheduled caste, scheduled tribe, reserved people. You can understand. In every respect, we are like that. Why? Even educational policies are changed. Who are changing all these things? Administrators. So therefore, we have to salute Engineer Sayyiduddin Saab. He has taken up this mission to motivate our community people to go for civil services. Really,
It is a invaluable and service for the community. It is going to change the structure. It is going to change the structure of our society. When Inshallah. our students and our community people, they are going to occupy the post of administrators by getting through civil examination. As you know, when the top post is, when this type of anything which is actually is worthy, one has to put in a lot of effort. Is it not? Now, today we are addressing two very valuable institutes, schools. One is Nilofar. The meaning of Nilofar is the most valuable diamond. The Yeah. another one is Green Valley. Green Valley is evergreen, that is the life prosperity. And the students, Wow. I wish these students, these Nilofar students and Green Valley students should come up and they should live up to the expectation of the name of their schools. Perhaps I feel, I wish, I pray that they are capable of doing, they'll do it also. The another aspect which I would like to suggest is schools should create a creative atmosphere. Creative atmosphere means conducive to create the very good students, equipped with good libraries. Of course, I have seen by dint of their dealings and all that, it looks their discipline is very nice. The manner in which they were presenting appears to be very courteous. I hope they will note it to equip and create an infrastructure with fully equipped libraries and also guide the students properly according to their ability. See, ability, the question is, I would like to tell you two aspects on it. One is attitude, another one is aptitude. What is the difference between attitude and aptitude? Attitude is inborn, aptitude is to be built up. How? Because a person's attitude, a person wants to become a particular, get a particular thing. That is an attitude. He wants to become like that. It is an attitude. Aptitude means it is his ability. It is his inner strength. Suppose a person wants to become a civil servant, he should work hard. He should build up his ability. It is not the economic condition. It is not this other aspects, but the willpower and determination. How the determination? अज़्म मोहकम हो तो बलाएं होती हैं पसपा. Azm means determination. If you are determined to do something, definitely you will do it. Azm महकम हो तो बलाएं होती हैं पसपा. कितने तूफान पलट देता है साहिब तन्हा. You have to act like a shore, an ardent and powerful shore which can turn away number of storms. That is determination. So what I mean to say is here, the focus is you determine yourself according to your ability. Plan yourself, whether you want to become doctor, you want to become an engineer, you want to go for police, you want to go for civil services. Accordingly, you prepare, you make preparations from now on, taking the guidance of your teachers, taking the guidance of various other organizations. For that, definitely, now you are provided with a lot of aids. That means you can search through Google, you can search through newspaper. Aspect which I am going to tell you is
One is accumulation of knowledge. Second one is expression. A person may have lot of knowledge, but he may not be able to express it. जो मैं समझा वो दूसरों को वैसा ही समझाना. That is an art. See, writing an essay, writing anything, that is an art. You have to go on writing it. Suppose you just plan it for some in a particular composition, a particular topic. You may be having a lot of ideas. When it comes to writing, then everything will be a different this thing. You will feel a lot of difficulties. Yet another thing is, you should have a repository of words. Repository of means treasure. Treasure of vocabulary. Treasure of vocabulary. You should not think that Nilofer School, since it is situated in Nampally, it is inferior to a school which is situated in Jubilee Hills, or a school situated in UK, or a school situated in America. No. You should first say that you are the superior, and whatever you have got, you should be the best one. Similarly, Green Valley also should not think that it is in Karwan. Karwan means it is a great meaning it has got. My sincere request to the principals, staff members, and also the correspondents of the schools to prepare the candidates. That means grouping them according to their aptitude. That means whether they want to, because some people they are interested, they are physically very strong and all that, they want to go to army, they want to go to police. Say some are, they have got a different attitude. So like that, grouping them, identifying their aptitude, you conduct motivation. Another request for me is, nowadays schools, sorry to say, but it should not be meant otherwise, they have become very, very commercial. That means commercialization, because of privatization, we can't avoid. But at the same time, it should be coupled humanitarian also, humanity also, where there are deserving students. Don't weigh them on the scales of your fees or finance, etc. Consider them, give them concessions. Secondly, there are number of organizations which are providing scholarships to number of students. Number third one is, you conduct competitions in different activities, physical as also mental. So by this, you are going to build up a sort of infrastructure. In case if you don't have playgrounds, etc., I request that you may utilize the playgrounds or the open spaces of either municipality or the government. In case of difficulty, you please contact me. I have got excellent rapport with the government. I can allow you to practice, conduct their practices of students either in municipal grounds or the government grounds, etc. That also we can help with. Great. And great, also, great. you also, what my another request is, you also get in touch with the education department people. You invite education department people frequently to motivate your students, to know about the policies of the government, to know about the education policy, to know about the various concessions, etc. and etc. So this both combined efforts, that means one, you being the provider of facilities, the another one, your students who are absorbing whatever the facilities you give,
If anything that is not there, you try to procure them by knocking the doors of voluntary organizations. For any help and all that, you can write to me. I will guide you even to get the foreign scholarships also. There are certain NGOs which I know they are giving out of their, they are getting funds from their corporate social responsibility fund. This another one more thing I wanted to suggest to the principals and school is, at least in a day you should have one moral class for the students other than subjects, because nowadays we have forgotten this aspect. We have become only confined only to subjects. We are not including other topics. You know, in the good olden days, we used to have a moral class in which the character building sermons were given, and people, the students were inspired by narrating the stories of heroes. That's how they were used to be inspired and all that. So my good wishes are with the students of the both the schools, and also I wish that this mission, which is at the preliminary stage, it should also cover the other aspects of civil services, Inshallah. other Inshallah. steps, what I mean. Yeah. And I salute Engineer Saiduddin Saab for having Yes. taken this a very, very useful mission for to enrich our community, to actually to develop their social fabric, which the commissions could not do. So, and I also thank immensely to other speakers, and our Bashir Ahmad Saab, Commander-in-Chief, he is carrying on these activities very, what you can say, enthusiastically, motivating the students. With these few Thank you. words, Thank you. Thank you. by Allah Hafiz, and my good wishes are with you, sir. So now I may be permitted to leave because I have to attend one more session there. Okay. Yes. Thank you Yes. very much, sir. And we are very much happy that we listened. बच्चों, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अपने देश के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ यूसुफ मुल्ला साहब ने काम किया है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और उन्होंने आपको प्रॉमिस भी किया है मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल्स को, जब कभी उनकी जरूरत पड़ेगी आपको तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। बहुत बड़ी खुशी की बात है अपने लिए। लेट अस क्लैप फॉर डॉक्टर यूसुफ मुल्ला। इट वाज वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर यूसुफ मुल्ला। इंशाल्लाह उनसे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, और खासकर जो बच्चे से पहले जब जैसा बता रहा था जो अटेंड नहीं किए हैं इस वेबिनार को, आपको मालूम नहीं है कितना इंपॉर्टेंट वेबिनार है। जब फीडबैक फॉर्म आप भेजेंगे हमारे पास, वी आर गोइंग टू कॉल दोज बॉयज एंड गर्ल्स विद द पेरेंट्स। ये मैं हेलो हाय बाय बाय करके जाने के लिए हम नहीं आए थे, हम पेरेंट्स को बुला के, आप हमारे पीछे कैसे लोग हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं दिल खोल के आपकी मदद करना चाह रहे हैं। हर हिसाब से अपने बच्चे ऐसे बेखूब बैठे हुए हैं कि उसकी वैल्यू नहीं मालूम है उनको। अल्लाह उनको अकल दे, समझदारी दे, बस मे गॉड ब्लेस देम, और कुछ भी ज्यादा बोल नहीं सकते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वर हियरिंग डॉक्टर यूसुफ मुल्ला, the world famous speaker and the co-worker of Dr. Manmohan Singh, of ex-Prime Minister of India. And now I invite Engineer Saiduddin Sahab, who started this organization, CSA Civil Service Academy, and Saiduddin Sahab is the former project engineer at Saudi Electricity Company for Southern Region, or former design engineer at Consulting and Design Engineering CVE, former project engineer at Public Electric Works Company, that is Benghazi, India, and he studied
BTech, electrical engineering, long back from our own Usmania University. One person with a divine purpose, passion, and power is better than 99 people who are merely interested. Passion is stronger than interest. He got the passion. Yes, हमारे बच्चों के लिए कुछ करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन more than 60 webinars we conducted and hundreds of students are coming to our offices. 2-3 offices we have with the parents and we are helping them. जो नहीं आए अल्लाह उनको अकल दे, समझदारी दे, कम से कम फ्यूचर में इस तरह के अच्छे मौकों को अपने हाथ से ना गंवाएं. आमीन. I request Engineer Saiduddin साहब to go for the presentation of the day. असल मेन सिविल सर्विसेज है क्या, क्या सीखना है, क्या सीखने की क्या जरूरत है, all you want to know about civil services. I request the founder and president of the Civil Service Academy Hyderabad, Engineer Saiduddin Sahab from Jeddah, Saudi Arabia, and we are implementing his ideology about civil services, spreading the awareness among Muslim youth particularly, and luckily we got him as a main speaker of the day. I request Engineer Saiduddin Sahab to present the main concept of our webinar, that is all you want to know about civil services. Over to you, sir, please. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Okay, so we start the program inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the students, bright students of Nilofar High School and High School Caravan, Hyderabad. Welcome to this webinar. आज का जो वेबिनार है इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको अच्छी तरह सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो ये आपकी जिंदगियां बदल देगा इंशाल्लाह. आप लोग आज जो थे कल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह. टुमारो यू शुड इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. ओके, तो आज हम लोग क्या सिविल सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं. हम लोग जो एक शुरू करें सिविल सर्विसेज एकेडमी, इसका मकसद ये है कि टू पॉपुलराइज सिविल सर्विसेज एज ए सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन. यानी अभी जैसा यूसुफ मुल्ला साहब बता रहे थे कि जनरली बच्चों से पूछो कि बच्चे आप लोग क्या बनना चाह रहे हैं, सबसे पहले बच्चे तो मालूम ही नहीं रहता उनको क्या 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 बनना क्या है. वो लोग बोलते हैं कि मैं 10th पास होने के बाद सोचूंगा क्या करना है, या कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद सोचूंगा क्या करना है. तो ये बात नहीं है बेटा, आज से आप लोगों को अभी से तैयारी होना चाहिए. अगर अभी आप तैयार नहीं करें तो वो इसका मतलब ऐसा होगा जैसा कि कोई आदमी एयरपोर्ट जा रहा है और उसको मालूम नहीं है कि कौन से प्लेन में बैठना है. तो इसलिए आज से आप लोगों को सोचना चाहिए कि मैं जिंदगी में बनना क्या है, मुझे कौन सी लाइन में मेरे को जाना है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाथ उठा के बताइए ये सही समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग. ऐसा रिस्पॉन्स करते रहिए आप लोग, तो मालूम होता कि भाई आप लोग सुन रहे मेरी बात. वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. को आज ये टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, व्हाट इज सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं, एंड किन चीज़ों ने हमको जो है ब्यूरोक्रेसी में जाने से रोक रहा है, वो बातें मैं बताऊंगा आपको. एंड हमको किस तरह जो है इसमें जो है हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, और आपका आने वाले एग्जाम के बारे में बताऊंगा, और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको किस तरह आप लोगों को प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन पास सिविल सर्विसेज. सबसे पहले जो है सिविल सर्विसेज क्या है ये समझ लीजिए आप लोग. जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी जो है माशरे में चलाने के लिए. जैसा कि घर में जो है वालिद का जो पोजीशन रहता है, उस तरह जो है सिविल सर्विसेज का जो मुकाम है गवर्नमेंट चलाने के लिए वो इस तरह है. जैसा कि अगर घर में देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं हो तो आपका बल्ब जलता है, नहीं जलता, यस. तो इसी तरह जो है अगर सिविल सर्विसेज अगर नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती है. तो सिविल सर्विसेज का इतना इंपॉर्टेंस है. और उसी तरह जैसा कि बॉडी में जो है ब्लड है, ब्लड का जो इस्तेमाल, ब्लड का जो यूजेस हैं कि इट हैज़ गॉट 3 फंक्शंस. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. वाइट ब्लड सेल्स फाइट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस. इस तरह जो है सिविल सर्विसेज क्या करते हैं लोग, दे प्रिपेयर द प्लान्स और उसको जो है लोगों को बताते, और वो लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते, और सारा जो है कम्युनिटी में जस्टिस एंड पीस मेंटेन करते. सो दिस इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिविल सर्वेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें जो है इंसान बनाया. उसने जो है हमको एक चींटी या कोई जानवर नहीं बनाया. सही है ना बच्चों? यस, हम लोग
इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया हमको. यस, वेरी गुड, माशाल्लाह. तो द बैलेंस इन द वर्ल्ड इज रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ आवर क्रिएटर. अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने अपने तरीके से बनाया, हर चीज़ को सही तरीके से सही प्रोपोर्शन में बनाया. एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू हैव ए प्लान फॉर पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ. जैसा कि अल्लाह ताला ने जिस तरह प्लान बना के सारी चीज़ें बनाई है, उसी तरह हम सबको जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में प्लान होना चाहिए. हमारा भी प्लान होना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं. तो इसके बारे में एक कोटेशन ये है कि इफ वन फेल्स टू प्लान ही इज प्लानिंग टू फेल. समझ गए ना. अगर हमारे पास प्लान नहीं है, मतलब है कि हम जो है फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं. सबसे पहले आपको पता है कि सारे रिलीजन, जितने भी रिलीजन्स हैं, उन सब की किताबों में क्या लिखा हुआ है कि अपना जो क्रिएटर है वो एक ही है, वाहिद अल्लाह ताला एक है. सही है ना. यस, हाथ उठाइए. आवर क्रिएटर इज ओनली वन एंड ही हैज नो शेप और फॉर्म, देयरफॉर वी मस्ट वर्शिप ओनली वन गॉड. एक अल्लाह को ही हमको इबादत करना है ना बच्चों. एंड वी शुड नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद हिम. एसोसिएशन पार्टनर बोलते शिर्क करने को बोलते हैं, और शिर्क जो है सबसे बड़ा गुनाह है. जो शिर्क करता है वो डायरेक्टली जहन्नम में जाता है. तो हमको क्या चाहिए? ऑलवेज स्टैंड बाय ट्रुथ. हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और सपोर्ट एंड डू जस्टिस. अदल का साथ देना चाहिए. इवन इफ इट इज अगेंस्ट यू, योर पेरेंट्स एंड योर डियर वंस. ये नहीं कि मेरे खिलाफ जा रहा, बल्कि उसको इंसाफ को जो है वो नकारना नहीं चाहिए. If you see an injustice being done, stop it by hand. आप में ताकत हो तो जो है किसी का जुल्म हो रहा है तो उसको हाथ से रोको. अगर नहीं है तो कम से कम जबान से बोलो. अगर वो भी नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा समझो. ये सबसे कम दर्जा है ईमान का. सही है ना बच्चों. तो ये कम से कम दर्जा है. तो हमको कम से कम जो है जब जुल्म हो रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और उसको रोकना चाहिए. सो व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. हमको इंसान जो है ना, हमको इन जानवरों से क्या चीज़ अलग करती है? इट इज़ एबिलिटी टू थिंक एंड कम्युनिकेट. हमको जो सोचने की और बोलने की जो सलाहियत है, ये जो है हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है. दैट दे आर कॉल्ड नोबलेस्ट ऑफ द क्रिएशंस. दुनिया में सबसे जो है अच्छी जो क्रिएशन है वो इंसान की है. वो क्यों है? बिकॉज वी कैन थिंक एंड वी कैन कम्युनिकेट. इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. द फर्स्ट वर्ड रिवील्ड ऑफ द कुरान वाज इक़रा. यानी अल्लाह ताला ने जब कुरान भेजा तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोले? इक़रा बोले. यानी रीड, रिसाइट एंड एजुकेट योरसेल्फ. सीक एजुकेशन. एंड इसके माने क्या है? बी एजुकेटेड. एजुकेशन इज नॉट ओनली द राइट बट इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी मेल एंड फीमेल ऑफ इंडिया. हर एक के लिए ये जिम्मेदारी है. ये खाली जो है टाइम पास के लिए नहीं है. हर एक को जो है जानना चाहिए. और आप लोग मुबारकबाद हैं कि आप लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह. तो दिस इज़ वन ऑफ द, ये अल्लाह की ये जो है मेहरबानी हम पे, ये अल्लाह का जो है बहुत बड़ा इनाम है. द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट टू हिज चाइल्ड इज़ बेस्ट एजुकेशन. बेस्ट एजुकेशन देना जो है हर पेरेंट की जिम्मेदारी है. और आपके माँ बाप आपको जो है स्कूलों में एडमिट करा के आप लोगों पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं. एजुकेशन इज़ ए पासपोर्ट ऑफ फ्यूचर. सुने बच्चों, ये जो है एजुकेशन इज़ पासपोर्ट फॉर फ्यूचर एंड फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु आर प्रिपेयर फॉर इट टुडे. द मोस्ट वैल्यूबल गिफ्ट ऑफ अल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है हमको? ही हैज गिवन अस मेनी ब्लेसिंग्स, मेड अस ह्यूमन बीइंग्स, गेव अस साउंड हेल्थ, थिंकिंग माइंड एंड पीसफुल लाइफ. सही है ना बच्चों. गॉड हैज क्रिएटेड अस इनवैल्यूएबल. कैन एनीवन सेल पार्ट्स ऑफ वंस बॉडी फॉर मनी? अगर आदमी किसी को बोले कि भाई मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूँ, तुम्हारा हाथ दे दो, कोई देता बच्चा? और इसी तरह जो है 1 करोड़ देता हूँ मैं, आँख दो बोल तो कोई देता? अगर इस तरह हम जो है अगर वैल्यू लगाए हर एक पार्ट की तो अपन कितने बिलियनर हो जाएंगे ना. हमारा जिस्म खुद ही जो है एक बिलियनर का जिस्म हो जाएगा. तो हम इतना सारा जो है हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट रख के हम जो बोलते हैं कि हम जो हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब हैं, हम बेकार हैं, ऐसा समझते अपन. तो ये बिल्कुल गलत बात है. और इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अपने को? मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स इन आवर लाइफ इज़ टाइम. टाइम जो है वो बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यू कैनॉट बाई इट नॉर बारो इट, नाइदर यू कैन स्टील इट फ्रॉम अदर्स. टाइम जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अल्लाह ताला ने जो हमको दिया है. सो इसको जो है मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है. अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो टाइम को हम सही मैनेज करना चाहिए. तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप? तो ये जो है यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ मैं आपको कि लिस्ट आउट द टास्क टू बी डन ऑन ए पेज ऑफ पेपर. आपको जो काम करने का है वो सब जो है आप एक पेपर पे लिख लेना चाहिए. 1 2 3 4. कल मेरे को पढ़ना है, कल ये सब्जेक्ट देना है, कल इम्तिहान के लिए तैयारी करना है,
कल किसी से मिलने का है, ये जो है आप ऐसे कितने जो भी काम करने का है दूसरे दिन आप एक पेपर पे लिख लेना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है उसको ए कैटेगरी बनाओ, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको बी कैटेगरी बनाओ, जो सबसे लीस्ट है अगर नहीं करने से कुछ नहीं होगा वैसे लोगों को सी कैटेगरी बनाओ। और जब दूसरा दिन आएगा तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले ए कैटेगरी के आइटम्स है उनको करना चाहिए, ना कि सी कैटेगरी के आइटम्स। जब आप ए कैटेगरी के आइटम करेंगे तो आप जो है अचीवमेंट करेंगे, आपका रिजल्ट जो है अच्छा रहेगा, आपका दिन का अचीवमेंट हो जाएगा। और एवरी पर्सन हैज गॉट ओनली 24 आवर्स अ डे, सही है ना बच्चों, हाथ उठाओ, सही है। कितने घंटे हैं सबके लिए, 24 घंटे ही हैं। तो आप देखेंगे कई लोग जो है बिलियनर्स बन गए, कई जो है करोड़पति हैं और कई लोग जो है बिगर्स हैं, मांग रहे हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? क्योंकि जिसने जो टाइम का इस्तेमाल किया वो जो है सही रास्ते पे पहुंचा, वो आगे बढ़ा, वो जो है लखपति करोड़पति बना। और जो टाइम का इस्तेमाल नहीं किया वो जो है भिखारी रह गया। तो बच्चों आप लोगों को क्या बनना है, करोड़पति बनना है ना? यस, आप लोगों को भी अच्छे पैसे वाले बनना है ना, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। तो देखिए बिल गेट जो है ना, आप नाम सुने हैं या नहीं, तो वो आज जो है रिचेस्ट आदमी है, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। तो उसने क्या कहा मालूम है, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर फॉल्ट। कि आप जो है गरीब पैदा होना आपका जो है आपकी गलती नहीं है, मगर अगर आप गरीबी में मरे तो यह आपकी गलती है। क्योंकि अगर आप इस्तेमाल नहीं करें, टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करें तो आप गरीब रहेंगे, तो ये आपकी जो है नाकामी रहेगी। तो इसलिए टाइम का जो सही इस्तेमाल करेगा वो कामयाब रहेगा ज़िंदगी में। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है कुछ ये चंद चीज़ें हैं जिनको याद रखना है आपको, मैं बाद में पूछूंगा। ये देखिए बिल गेट जो है उसकी हर 1 सेकंड की आमदनी जो है 15,200 रुपये हर सेकंड की, पर सेकंड। आपको पता है कि दिन में कितने सेकंड होते हैं, आप उसका हिसाब कर लो। और उसके बाद देखिए 122 करोड़ पर डे वो कमा रहा, 122 करोड़ रुपये पर डे उसकी आमदनी है। वो काम नहीं भी करा तो उसकी कंपनी उसको कमा के दे रही है 122 करोड़, ये याद रखो आप लोग, मैं पूछूंगा आपको। और उसके बाद में जो है जेफ बेजोस, ये उससे भी ज्यादा पैसे वाला आदमी है। ये कितने कमा रहा, 234 करोड़ ए डे, 234 करोड़ पर डे कमा रहा है, पर डे। तो बच्चों आप लोग जो है पर मंथ या पर अपनी जिंदगी में कमाने का सोचिए। आप कितने लोग हम में करोड़पति है बोलो? कई लोग तो जो है बिल्कुल भिखारी है, जो तनख्वाह अपने को खाने को बस नहीं होता। मगर ये लोग कितना कमा रहे देखिए। और ये लोग कैसा कमाए, इनके पास भी 24 घंटे ही थे। ये लोग जो है both of them also had 24 hours only. How could they earn? ये इसके बारे में सोचने की जरूरत है भाई। वो 24 घंटे में इतना पैसे कमाने के काबिल कैसे बने? तो वो लोग कहीं बाहर से तो नहीं लाए ना। तो ये 24 घंटे का जो सही इस्तेमाल करे वो लोग जो है आगे बढ़े, वो लोग जो जिंदगी में कामयाब है। तो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, गोल, एक मकसद हयात होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। आप देखेंगे फुटबॉल में जब गोल की तरफ सब जाते हैं और गोल में जाके बॉल डालते, जब अगर गोल नहीं है तो वो लोग कहाँ लड़ेंगे? दे विल बी भटकते रहेंगे। और गोल किसको बोलते हैं? देखिए आप, गोल अगर हर एक की जिंदगी में गोल होना चाहिए, एक मकसद हयात होना चाहिए। और गोल किस तरह होना चाहिए? गोल जो है स्मार्ट होनी चाहिए, स्मार्ट गोल बोलते हैं उसको। क्या था स्मार्ट मतलब? एस माने स्पेसिफिक। नजर आ रहा है आप लोगों को? नजर आ रहा है? ये हाथ उठा, समझ में आ रहा है? ये स्मार्ट होनी चाहिए। एम के माने मेजरेबल होना चाहिए, ए जो है अचीवेबल, आर रियलिस्टिक एंड टी इज टाइमली। यानी गोल जो है इस तरह का होना चाहिए। गोल जो है मैं जो है पैसे वाला बनूंगा, ये नहीं है। मैं जो है 1 करोड़ कमाऊंगा बोल के ऐसा 1 लाख कमाऊंगा या 10 लाख कमाऊंगा, इस तरह जो है स्पेसिफिक होनी चाहिए। ना कि जो है मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। और मेजर मैं कितने दिन में बनाना चाह रहा हूँ ये जो 1 लाख 1 करोड़ है, मैं क्या बैठे बैठे बन जाऊंगा क्या? नहीं बन सकता। इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, और वो गोल जो है आपके अचीवेबल होना चाहिए। अब आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, मैं करोड़पति बनता हूँ तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, आपको नहीं हो सकता। आप जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले जो गोल होना चाहिए वो आपको, आप जो है 1 किलोमीटर जाऊंगा, फिर उसके बाद में 10 किलोमीटर जाऊंगा, ऐसा अचीवेबल होना चाहिए। फिर वो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी उसको देखने से लोगों को समझ में आना चाहिए। और फिर ये टाइमली होना चाहिए, कितने देर में, कितने दिन में आप खत्म करेंगे, कितने महीनों में आप अचीव करेंगे, ये भी आपको लिखना चाहिए। तो गोल के बारे में आप लोग जो है गूगल पे देख सकते हैं। एंड बच्चों आप लोगों का क्या गोल है? आप लोगों का गोल है, हर एक का किसी ना किसी का, हर एक का कुछ ना कुछ बनने की ख्वाहिश होगी ना। तो आप लोग अभी तक गोल है आप लोगों का बना हुआ है, आप लोग पेपर पे लिख चुके हैं ये गोल में क्या बनना, नहीं लिखे होंगे सब, जो है बनने की ख्वाहिश होंगी खाली। अगर पेपर पे नहीं लिखे तो उसको बोलते हैं ख्वाहिश। पेपर पे अगर लिखे तो गोल होता है जिसको अचीव करने की आपका जो है डिटर्मिनेशन रहता है। तो जो भी गोल आपका रहता है वो पेपर पे लिखना चाहिए आपको। व्हाट इज योर गोल? हाउ डू यू वांट टू यूज योर नेक्स्ट 4 आवर्स?
ये प्लान होना चाहिए आपका। कल का दिन मैं किस तरह गुजारूंगा, आज का दिन में मेरे को क्या क्या काम करना है, ये आपको गोल होना चाहिए। ऑल ऑफ यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। आप लोग स्कूल में हैं तो माशाल्लाह आप लोगों के पास बहुत टाइम है। आप डू यू वांट टू बिकम लाइक बिल गेट एंड जेफ बेजोस, और यू वांट टू रिमेन इन डेप्थ? आप लोग भी जो है बिल गेट की तरह आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या डिसाइड कर लो अभी। अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो क्या करना है, आपको टाइम का सही इस्तेमाल करना है। करेंगे ना आप लोग? हाथ उठाइए। आप लोग सब टाइम का इस्तेमाल करेंगे ना सही? क्या बनना है लिखेंगे, पेपर पे लिख देना आप लोग क्या बनने का है आप लोग। ओके, द डिसीजन इज योर्स। वी आर हियर ट्राइंग टू शो यू द वे। हम लोग आपको सिर्फ रास्ता बता रहे कैसे आप बिलियनर बन सकते हैं, लाइक बिली गेट्स एंड जेफ बेजोस। ओके, और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि समंदर सबके लिए एक रहता, समंदर खुला हुआ रहता, मगर कुछ लोग उसमें जाके क्या लाते, मोती लेके आते समंदर के अंदर से, और कुछ लोग जो है मछली पकड़ के लाते, और कुछ लोग जो है कच्चा जिस्म लेके वापस आ जाते। तो क्या है, लाइफ इज कॉमन फॉर ऑल। वी गेट व्हाट वी ट्राई फॉर। हमको जो जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं अल्लाह ताला वो हमको हासिल करने देता, वो उसकी जो है हमको सलाहियत देता है। तो जो आदमी जहाँ तक जाना चाहता उसके लिए अल्लाह ताला उतनी सलाहियत देता, उतनी सकत देता है। तो ये बच्चों आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। सब मोटिवेशनल कोट्स ये जो है आप लोगों के लिए। इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। आप लोग प्लान करते हैं, उसमें जो है कई मुश्किलें आती है, तो क्या करना चाहिए, प्लान चेंज कर देते हैं आप लोग। या आप लोग प्लान जो है ना, आपको जो है रास्ता दूसरा ढूंढना चाहिए, प्लान चेंज नहीं करना चाहिए। गोल को जो है वही रखना चाहिए। डिस्ट्रॉय योर एनिमीज बाय मेकिंग देम योर फ्रेंड्स। अगर कोई दुश्मन हो जाए तो उससे और लड़ाई बढ़ा लेना नहीं चाहिए, बल्कि किसी तरह उससे दोस्ती कर लेना चाहिए ताकि दुश्मनी खत्म हो जाए। जिंदगी में दोस्तों को बढ़ाना चाहिए, दुश्मनों को नहीं बढ़ाना चाहिए। इन सक्सेस जीनियस इज 1% एंड 99% इज परस्पिरेशन। इसका मतलब क्या, आपका जो दिमाग है वो 1% है और मेहनत जो है 99% है, और जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, टाइड टू ए गोल, नॉट टू द पीपल और ऑब्जेक्ट। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या है, एक मकसद हयात बनना, उसके लिए काम करना। अवॉइडिंग फेलियर इज अवॉइडिंग प्रोग्रेस। मतलब है कि आप जब कोई किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो आपको कई तकालीफ आते, कई ऑब्स्टिकल्स आते, आप उनको क्रॉस करना चाहिए, आप उनसे जो है पीछे नहीं हट जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट की मैं आपको बताया था कि यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है वो किसको, ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो ये क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसा कि ऑल द डिपार्टमेंट हेड्स टुगेदर विद स्टाफ फॉर्म द ब्यूरोक्रेसी। जितने डिपार्टमेंट हेड्स रहते हैं और उनके काम करने वाले रहते हैं, सब मिला के क्या बोलते हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। Bureaucracy drafts bills, proposes projects, and legislatures approve them. Subsequently, bureaucracy informs orders and ordinances. And generally, all heads of the bureaucracy are appointed from the civil services. जितने भी ब्यूरोक्रेसी पे काम करते हैं वो लोग IAS, IFS, IPS, इसके फुल फॉर्म मालूम है आप लोगों को? IAS किसको बोलते हैं पता है? कितने लोगों को मालूम? बोलिए, IAS मालूम है किसी को? क्या है? माशाल्लाह, ओके। IFS, IPS मालूम है इसके फुल फॉर्म? एनीवे, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए IAS का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और IPS इज इंडियन पुलिस सर्विस। और ये सब ऐसा बनते यूपीएससी का एग्जाम जो देते हैं वो लोग जो है ये कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं। ये देखिए क्लासरूम है, जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं उसी तरह क्लासरूम है। ये जो पढ़ा रही है और ये प्रिंसिपल है जो स्कूल मैनेज करते, और ये जो है डायरेक्टर एजुकेशन रहते, ये जो है कई स्कूलों को मैनेज करते हैं, उनका कंट्रोल। और ये जो है ये क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रहते हैं। ये लोग जो है गवर्नमेंट को एडवाइस देते कि गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, एग्जाम्स कब कंडक्ट करना चाहिए और कब हॉलीडेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पॉलिसीज बनाने वाले रहते हैं। ये एजुकेशन सेक्रेटरी बोलते हैं इनको। ये लोग ही जो है अपने मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी। अब ये देखिए एग्जाम्पल, पुलिस डिपार्टमेंट में आप सबसे लोएस्ट लेवल में कौन रहते हैं? पुलिस कांस्टेबल रहता। तो 5 साल या 7 साल करने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता, और सबसे ऊपर वहाँ पे क्या रहता है? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। दिस इज द डिपार्टमेंट। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए। यहाँ पे हम बता रहे हैं सीक्रेट ऑफ कमिंग अप फास्ट इन लाइफ। बच्चों ये जरा इसको जरा समझिए आप लोग। सीक्रेट टू कम अप फास्ट इन लाइफ क्या है? आपको पता है सीक्रेट कैसा आएंगे ऊपर? आप जिंदगी में अगर फास्ट ऊपर आना है तो क्या करेंगे? अगर हर साल आप इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो वो बहुत, मगर अगर जल्दी आपको तो क्या करना है? पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेन मैसेज ऑफ आज का जो वेबिनार का मैसेज यही है
जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना और उसमें कामयाब होना, आप लोग जो है जिंदगी में आगे बढ़ते जल्दी से। ये देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसका। ऑन द लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए आप, एक आदमी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करता और उसको 5 से 7 साल लगते हैं टू बिकम इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर को 5 से 7 साल लगते हैं टू बिकम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने के लिए। उसके बाद में 7 से 10 साल बनते हैं टू बिकम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मगर एक लड़का जो है ग्रेजुएशन के बाद जब यूपी पास कर लेता है तो डायरेक्टली वो क्या करता है, राइट साइड देखिए आप, 20 to 25 ईयर जंप करके डायरेक्टली वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनता है। तो बच्चों कौन सा रास्ता अच्छा है बोलो? जो आदमी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है वो देखिए कितना जल्दी वो आगे बढ़ता है, 1 साल के अंदर वो जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया। और एक दूसरा आदमी जो है 25 साल लगे उसको यहाँ पे पहुंचने के लिए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और स्कूल लेवल पे देयर आर, देखिए पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आजकल बच्चों हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Yes, sir, excuse me, sir, 1 minute, sir. Okay. I think there is a noise. Somebody is talking or disturbing the program. Please mute your mics, children. After this session, we are going to have question and answer session. That is, raise your hand. Sir's voice. या आपका भी बंद होगा शायद, म्यूट करा साहब, मैं सबको म्यूट करा। स्विच ऑन योर माइक प्लीज। Yeah. So, I'm requesting all others. Okay, anyhow, sir, okay, better. After this session, we are going to have raise your hand session. That is question and answer session. अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सचमुच में आप कलेक्टर कैसा बनोगे, आईपीएस ऑफिसर कैसा बनोगे, आईएफएस ऑफिसर कैसा बनोगे, कई चीजें सर आपको आराम से समझाने वाले हैं। ध्यान से सुनो और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक है या थोड़ा लिखिए आप, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है और उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ध्यान से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आवर स्पीकर्स विल ट्राई टू explain you, and after seeing your body language, your voice modulation, confidence, we will call you with your parents to our office to help you. Okay, it is very important thing. खाली बात करके जाने के लिए नहीं आए हम बहुत कुछ करने वाले हैं अल्लाह चाहते। ओके बेटा, ओके सर, प्लीज करिए। ओके बच्चों, ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाथ उठा के बताइए यस। See, mere reading books does not give you sufficient knowledge to face the current scenario of challenges and present rapidly changing world. तो क्या करना चाहिए? Competitive exams bring out the hidden talents of the children. इसीलिए आपको हम एडवाइस दे रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो। The meritorious children with exceptional talents are appreciated with scholarships, medals and merit certificates. Thus they feel encouraged and confident. तो बच्चों इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि हम जो आप लोगों को एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहिए। और एग्जाम बेटा ऐसा नहीं है कि खाली कॉलेज के बाद है या डिग्री के बाद ही करने के नहीं है, हर लेवल पे एग्जाम्स अवेलेबल है। अभी जो आप जो स्कूल में हैं, ये देखिए मैं आपको 3 किस्म के एग्जाम बताने वाला हूँ। जो आप लोग स्कूल लेवल पे दे सकते हैं वो एग्जाम मैं बताने वाला हूँ। अभी इस लेवल पे आप लोग एग्जाम देने का है। ये मैं खास तौर से स्कूल के मैनेजमेंट लोगों को भी ये वॉच करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं स्कूल मैनेजमेंट, टेक नोट ऑफ दीज स्लाइड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। Please, identify all the available exams now. There are list of exams before class 12 and there are exams after class 12 and after graduation there are exams. तो ये सारे आप लोगों को मालूम करके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हर एक आदमी, हर एक बच्चा जो है जिसमें पार्टिसिपेट करता करिए इसमें। अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों की सलाहियत बढ़ेगी। ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्स बिफोर क्लास 12 है, देखिए, यानी आप लोगों के लिए सूटेबल एग्जाम्स है ये। एंड कितने एग्जाम्स है? तकरीबन 34 एग्जाम्स है इन टोटल। यहाँ पे 7 लिखे हुए और ये 35 एग्जाम्स होते पूरे। ये एग्जाम्स अवेलेबल है जो आप लोग अब कर सकते हैं। पता नहीं इसमें एनटीएससी इसमें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है। आप लोगों ने नाम सुना है एनटीएससी का? नाम सुने बच्चों को? इस नाम सुना इसमें एनटीएससी का नाम सुने, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। बच्चों आप लोग सुने नाम? ये नहीं सुने ना? यस, दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली। ये जो है अपने स्कूल के मैनेजमेंट प्लीज लिसन टू दिस एंड यू नो लर्न एंड प्लीज इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। एनटीएससी एग्जाम है एंड देयर इज नेशनल साइंस ओलंपियाड रहता है एग्जाम एंड साइंस इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड रहता, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम और इंग्लिश मैराथन, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड। ये सारे एग्जाम्स है बच्चों। इसके अलावा भी 28 एग्जाम्स और हैं जो आप लोग जो इस पे अपीयर हो सकते।
इसमें जो है पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग इसकी मालूमात करके। और इसके बाद ये एग्जाम्स है जो आप 12th के बाद देने के, आपको इंटरमीडिएट के बाद जो देने का है, जो आप कोर्स करना चाह रहे हैं उसके लिए एग्जाम्स हैं। जैसा इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो उसके एग्जाम्स हैं, और जो मेडिसिन करना चाह रहे हैं उनके लिए एग्जाम्स है, जो लॉ करना चाहते हैं, जो डॉक्टर जो वकील बनना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम्स है, जो मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अलग एग्जाम्स है। ये सारे एग्जाम देखो इधर लेफ्ट साइड पे लिखे हुए जेईई और जेईई एडवांस, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम्स है जो आईआईटी एनआईटी के लिए है, और ये जो है ये मेडिसिन के लिए। नीट एग्जाम के बारे में आप लोग सुना होगा, ये सब मेडिसिन के लिए और मेडिकल साइंसेज के जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए। ये बिटसैट, ये भी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम है। इसी तरह और कई एग्जाम्स अवेलेबल है जो आपको इंटरमीडिएट के बाद करना है, तो उनके लिए अभी से आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, और उसके लिए अभी से तैयारी करना चाहिए आप लोग। और ये जो एग्जाम्स है ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, आप लोग जब ग्रेजुएट बनेंगे तभी ये एग्जाम दे सकते हैं आप लोग। इसमें एग्जाम है सिविल सर्विसेज, इसके बारे में हम लोग मेनली आपको बताना चाह रहे हैं। और ये करने से क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सिविल सर्विसेज एग्जाम ये जो है कंडक्ट कौन करते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बोलते हैं। यूपीएससी जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका कंडक्ट करता है। और ये पास होने से क्या बनते हैं आप लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और 22 अदर दूसरे एलिट सर्विसेज बनते हैं, जिसमें जो है गजेटेड ऑफिस बनते हैं गवर्नमेंट के। आप लोग आईएएस का मैंने बताया आपको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड एलिट सर्विसेज। ये एग्जाम में जो है आप लोग दाखिला, ये जो है आप बन जाते हैं, और ये जो है सिविल सर्विसेज यानी ब्यूरोक्रेसी में आप शामिल होते हैं। और इसके बाद अगर इसमें आपको चांस नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम रहता है, वो एग्जाम दे सकते हैं आप, जिससे जो है आप उसमें भी गजेटेड ऑफिस बनते हैं, जैसा कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, ये जो राइट साइड पे लिखे हुए पोजीशंस। और उसी तरह जो है सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये डिफेंस में जाने के लिए है। और इसरो का एग्जाम है, ये साइंटिस्ट बनने के लिए है। डीआरडीओ, इसी तरह के कई एग्जाम्स अवेलेबल है जो आप लोग जो है जो ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, आप लोगों को मैं 3 लेवल के सीक्रेट ऑफ फास्ट ट्रैक ग्रोथ फॉर ग्रेजुएट्स, अब ग्रेजुएशन के बाद किस तरह लाइफ में आ सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑन द लेफ्ट साइड देखिए आप, यूपीएससी एग्जाम है जिससे मैंने बताया आपको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनते हैं। इसमें जो है साल में सिर्फ 900 से 1200 पोजीशन रहते खाली इसमें जॉब्स, और इसमें इतने सारे लोग तो नहीं आ सकते, यानी 1000 में एक लड़का सेलेक्ट होता। तो आपकी तैयारी इस तरह करना चाहिए कि आप 1000 या 2000 में आप जो करना चाहिए, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड फॉर आईएएस। इसके बाद अगर इसमें नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपको 20 to 25,000 पोस्ट आर अवेलेबल। और ये भी नहीं कर सकते तो क्या है, देयर आर स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इसमें आपको 100 से 150,000 ओपनिंग्स रहते पर ईयर, इसमें आप जा सकते हैं। तो ये आप लोग अभी से प्रिपेयर करना। जो आप यूपीएससी का जो तैयारी करता है वो जो है दूसरे सारे एग्जाम आसानी से पास कर सकता है। तो हम लोगों की आपको ख्वाहिश है कि आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करें। इन इंडिया हु रूल्स द नेशन, जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई प्रेसिडेंट रूल कर रहे, प्राइम मिनिस्टर रूल कर रहे या मिनिस्टर्स रूल कर रहे समस्या पर, मगर एक्चुअली क्या है, ये कौन करते हैं? 90% ऑफ द पॉलिसी फॉर्मुलेशंस आर डन बाय ब्यूरोक्रेसी। यानी यहाँ पे जो लड़की बैठी हुई है ये आईएएस पास की, यूपीएससी का एग्जाम पास करी हुई लड़की है, ये लोग एक्चुअली पॉलिसीज बनाते। तो बच्चों आप लोग भी एक दिन यहाँ पे बैठ सकते हैं इस लड़की की जगह। तो ये जो यूपीएससी ये जो है इतना है ना, इसकी तैयारी करके इसको पास करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड हमारी कम्युनिटी जो है हर जगह ये यूपीएससी में बहुत ओनली आईएएस में 3% है मुस्लिम्स, एंड आईएफएस में 1.8% है, आईपीएस में 4% है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। रिप्रेजेंटेशन इन यानी हर जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली हमारा रिप्रेजेंटेशन इन सिक्योरिटी एजेंसीज में 4% है, एंड 1% मिलिट्री में हम लोग जो सिर्फ 1% है, एंड आवर शेयर इन प्रिजन्स इज 25%। यानी जेलों में हमारे लोग कितने हैं? 25% जेल में है, एंड बेगर्स आर 20%, मांगने वालों में 20% मुसलमान है। तो ये जो है बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जिसको बच्चों हमको सब कुछ चेंज करना है, आप हम सब मिलकर चेंज करना है। ये जो गरीब लोग हैं इनकी जो है काम करने का है। इन नो does represent Muslims in the government department match their population? यानी आप लोगों को पता है यानी मुस्लिम की पॉपुलेशन इंडिया में तकरीबन 14 to 15% है। हमारा प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन कितना है? 2 to 3% है खाली। तो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसकी वजह क्या है? ऑल आवर ब्राइट स्टूडेंट्स आर गोइंग वन डायरेक्शन, ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिंग टू बिकम इंजीनियर एंड मेडिसिन, नॉट गोइंग फॉर अदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स सच एज आईएएस, आईपीएस, एलएलबी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं, जर्नलिज्म, बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, मिलिट्री, मीडिया, एंकरिंग, ये सारे फील्ड्स अवेलेबल है जिसमें भी कामयाबी होती है। इसमें भी जो है आदमी जो है बहुत सक्सेसफुल होता।
मगर अपने लोग नहीं जाते बिल्कुल. Today lawyers have become very important to fight against injustice, but we find very few lawyers practicing in the lower and higher courts. तो ये भी एक बहुत important field है जो हम लोगों ने neglect किया हुआ है बच्चों. There is lack of presence in media industry. We are very financial dealings. हम लोग जो है सही तरीके से अपने finances को इस्तेमाल नहीं करते. ये भी बहुत बड़ा हमारी नाकामी है. Media today is creating havoc by wrong propaganda, and due to absence of our people, Muslims and community are shown in bad light. And share of Muslim in general, we have divorced the government and government jobs. गवर्नमेंट में आने से आपको बच्चों पावर मिलता है, गवर्नमेंट रूल करने का आपको चांस मिलता है, एंड हम लोगों ने गवर्नमेंट छोड़ दिए. ब्यूरोक्रेसी इज द गवर्नमेंट मशीनरी, एंड इन इट आवर प्रेजेंस इज वेरी लो. As a result, we are far away from the corridors of power. Consequently, we have become powerless. In many offices, we do not find even a peon or a tea boy. ये देखिए बच्चों, as a result, we do not know what decisions are being taken and what policies and projects are being planned. We come to know at the stage of implementation के वक्त हमको मालूम होता है कि क्या क्या प्लान करें, क्या क्या बनाने वाले हैं. तब हम लोग रिएक्ट करें तो क्या होता है, हम लोग के बारे में गलत ओपिनियन बनता है. We are less than 3%. The main reason is we are not participating in the exam. बच्चों, हमारे जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. 15% हमारा पॉपुलेशन है, हमारी जो है खाली 3% बच्चे पॉपुलेशन उसमें, इसकी वजह से हम लोग जो है उसमें मिल रहा नहीं हमको. तो ये जो है सब यही बता रहे कि हम जो है इन लास्ट 74 years we have not produced 7 IAS from Hyderabad directly, although we have great talent. There is lack of awareness and importance of IAS among Muslim community. There is no passion to take up this exam. ये वजह है बच्चों. ये और मुस्लिम्स क्यों नहीं जा रहे, इसके क्या वजूहत है मैं आपको बता रहा हूँ. क्योंकि हमारे दिमागों में जो है गलत ओपिनियंस बैठे हुए, जिसकी वजह से हम लोग एग्जाम की तरफ नहीं जाते. इसमें क्या है देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं, इट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम. ऑफ कोर्स इट इज़ अ टफ एग्जाम, क्योंकि हाई पोस्ट के लिए आपको एग्जाम भी टफ होगा. तो इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. आपको कहीं दूर जाना है तो आपको प्रिपरेशन भी लॉन्ग करना पड़ेगा ना बच्चों. एंड जनरली ये सबसे बड़ा अपने लिए हमारे लोगों का एक्सक्यूज़ है कि जनरली मुस्लिम्स आर नॉट सेलेक्टेड. ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है. बच्चे जो काबिल रहते हैं वो लोग सेलेक्ट होते हैं. और मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ उसके कि कितने मुस्लिम बच्चे जो है टॉप करें, नॉट ओनली पास करें बल्कि टॉप करें एग्जाम्स. वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत है. क्योंकि आपको सिलेबस पहले दिन से दिया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको किताबें दे दी जा रही है, आपको क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम होने वाला है बता दिया जा रहा है. उसके बाद इसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे बोल सकते हैं आप. नो गारंटी ऑफ सिलेक्शन. ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज़ का गारंटी जो है जब तक आप पास नहीं करें कोई भी गारंटी नहीं देता आपको. ओनली चिल्ड्रन ऑफ रिच पीपल आर सेलेक्टेड. ये भी एक गलत कंसेप्ट है कि खाली पैसे वालों के बच्चे सेलेक्ट होते हैं. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे कमज़ोर तबके के बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं. रेम्यूनरेशन इज़ वेरी लो इन द गवर्नमेंट. बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट के बिल्कुल उसकी तरह यानी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह की सैलरीज मिल रहे हैं अपने. वन कैनॉट पास विदाउट एक्सपेंसिव एग्जाम. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Okay. The minimum salary will be 3 lakhs. Okay. Yes, sir. Please continue. And no one passes in the first, because there are 30 to 40% people pass in the first attempt actually. So बच्चों इस तरह के हमारे पास रॉन्ग कंसेप्ट है, इनको निकाल देने की जरूरत है. आप लोग इसको समझिए कि इसमें कोई रुकावट नहीं है. जो बच्चा तैयारी करता है, जो अच्छा पैशनेट रहता है, ही विल डेफिनेटली पास. और जो बच्चों जो काबिल बच्चे हैं उनके लिए there are so many coaching institutes are available. ये लिस्ट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फ्री तालीम दे रहे, फ्री कोचिंग दे रहे IAS पास करने के लिए, जिसमें जो है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी है, जामे मिलिया है, जामे हमदर्द है. इनके नाम सुने या नहीं मालूम, लेकिन ये जैसा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू, ये हैदराबाद में, ये लोग जो है आप लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे जो है फ्री कोचिंग दे रहे. जो बच्चे काबिल रहते और जो करना चाहते, जिनका पैशन रहता उनको जो है. और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि MS एकेडमी है हैदराबाद में, ये लोग जो है फ्री कोचिंग दे रहे बच्चों को. तो बच्चों आप लोग में जो काबिल है, जो करना चाहते हैं, आप लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू इफ यू आर प्रिपेयर्ड. ये बच्चों में ये पिक्चर देखिए, आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा कि क्या हकीकत क्या है. ऑन द लेफ्ट साइड यू सी द पिक्चर ऑफ होम अंसार शेख फ्रॉम महाराष्ट्र. ये क्या है, ये किसका, ये ऑटो ड्राइवर का लड़का है जो IAS फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करा एट द यंगेस्ट एज ऑफ 21 years. 21 साल की उम्र में इसने IAS पास किया. आपका इसका नाम सुने थे बच्चों, कोई आप लोग सुने थे पहले, नहीं सुने ना?
यस ओके। ये देखिए ऑन द राइट साइड देखिए टीना दाबी बोल के एक लड़की है जो 22 साल की उम्र में इसने 2015 में यूपीएससी टॉप करी बच्ची है। और ये नीचे देखिए आप सफीन हसन खान है, ये यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम गुजरात है। ये भी जो है एक इलेक्ट्रिशियन का लड़का है और इसकी माँ जो है शादियों में जाके रोटियां बनाती थी। और ये देखिए ऑन द लेफ्ट साइड यू सी अतर आमिर खान है, ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है फ्रॉम कश्मीर। इसने जो है 2015 में सेकंड टॉप किया यूपीएससी में, जो है टॉप किया, सेकंड टॉप किया, सेकंड टॉपर था ये बीच में जो फोटो है अंकुर की है, ये फर्स्ट रैंकर है एट द एज ऑफ 22 इयर्स। ऑन द लेफ्ट साइड ये राइट साइड जो देखिए आप, ये डॉक्टर बुशरा बानो है, ये मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन है, शी पास यूपीएससी विद द 2 चिल्ड्रन। तो ये और ऑन लेफ्ट साइड नीचे देखिए आप जुनैद अहमद है जो 2018 में 3rd रैंक हासिल किया इसने, जुनैद अहमद। तो अभी इसमें बोलना है कि मुसलमान नहीं मिलते, मुसलमान ना सिर्फ पास करे बल्कि टॉप करे, देखिए आप। और ये बच्चे का आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, आप लोग कितने सुना नहीं मालूम। ऑन द लेफ्ट साइड जो फोटो देख रहे हैं आप, ये शोएब आफ्ताब की है जो उड़ीसा का है बच्चा। इसने नीट एग्जाम जो मेडिकल का एग्जाम है उसमें 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करके इसने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एग्जाम स्कोर सो मच। तो बेस्ट एकेडमिक सिस्टम में पास किया इसने। ऑन द राइट साइड आप देखिए अंसार शेख यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर एंड सफीन हसन जो है यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये जो है मुसलमान है। कैसे हुए लोग? तो ये बोलना कि मुसलमानों को नहीं मिलता बिल्कुल गलत बात है, ये जो है इल्जाम है एक्चुअली। ये देखिए एक लड़की जो है पूरी तरह हिजाब में रह के, जैनब वेस्ट बंगाल, शी ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स इन यूपीएससी। तो बच्चों आप लोगों को क्या है, सिर्फ आज का नहीं सोचना, आप लोगों को आगे का सोचना है। यानी अगले साल क्या करना है, आज से 5 साल के बाद क्या करना है, आज से 100 साल के बाद क्या करना है, 200 साल के बाद हमको क्या करना है, काम आप शुरू करना है जिसके बाद 100 साल के बाद इसका रिजल्ट आता। सुने बच्चों, तो आप लोगों को आगे का सोचने की जरूरत है। आप लोग व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, आपके पास प्लान है कल क्या करने का आपको, आज से 10 साल के बाद क्या करना है आपने सोचा है। ये 2020 है, 2021 शुरू हो गया आप लोगों का, तो आप लोगों के पास क्या प्लान है आपके पास होना चाहिए। यू कैन चूज टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप लोग जो सोच के बनेंगे वही जो है फ्यूचर ऑफ इंडिया बनेगा। अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिकुम, यानी अल्लाह उन लोगों की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो बच्चों ये आप लोग कोशिश करेंगे ना, आप लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये सब बनने के लिए। ये बच्चों जो अभी जो यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है उसका ये लास्ट डेट बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जो ग्रेजुएट्स है उनके लिए काबिल है। यूपीएससी में कौन बढ़ सकता है? जो 21 साल का होना चाहिए, इसके लिए इंडियन नेशनल होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या आखिरी साल में भी जो रहते हैं वो लोग भी अपियर हो सकते हैं, वो लोग जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो आने वाला जो एग्जाम है वो जो है उसके लिए एप्लीकेशन डेट है 2 मार्च तक जो है आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो अब जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए सहूलत है, उनके लिए मालूमात है। ये 3 मार्च तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें 3 लेवल का एग्जाम होता है बच्चों। ये यूपीएससी का जो एग्जाम है 3 लेवल का होता है। एक होता प्रिलिमिनरी और दूसरा है मेंस। ऑन द लेफ्ट साइड देखिए आप, मेंस होता है, इसके बाद जो है इसके बाद इंटरव्यू रहता है। ये 3 लेवल पे एग्जाम होता है। इसके 2050 इसके मार्क्स रहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं वो लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। तो जो एप्लीकेशन डेट के बाद जो फर्स्ट एग्जाम है प्रिलिमिनरी का कब है वो जून 27 जून को है 21 में, और जो मेंस एग्जाम है वो 22 फरवरी में, 2022 फरवरी में इसका मेन एग्जाम होगा। उसके 2-3 महीने के बाद जो है इंटरव्यूज हो गए, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो जो बच्चा आपसे तैयारी करता है वो 2022 में जाके वो आईएएस बनता है। तो ये इसकी साइकिल है एग्जाम की। ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिकमिंग आईएएस। आप लोगों में कितने लोग अभी आईएएस बनना चाहते हैं? आप लोगों में से तो समझ में आया आप लोगों को आईएएस बनना अच्छा है बोल के? कितने लोग बनना चाहते हैं आप लोगों में आईएएस? माशाल्लाह सारे लोग। तो बच्चा ये आप लोगों के लिए ये टिप्स हैं, ये आप लोग क्या करना चाहिए मैं आपको आइडियाज देता हूँ। तो आप लोग आज से शुरू करना है सब काम। क्या करना चाहिए आपको? स्टार्ट रीडिंग 1 or 2 न्यूज़पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस। हर दिन आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है। और सबसे अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा है? हिंदू है। इंग्लिश अच्छी रहती है इसकी और इसके कंटेंट भी अच्छे रहते हैं, तो कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है अगर पढ़े तो उससे जो आप लोगों के लिए बहुत कामयाबी होगी। मेक नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप लोगों को क्या करना है? न्यूज़ पढ़ के अपनी नोट्स बनाना चाहिए। अभी से नोट्स बनाने की तैयारी करो, जो आपको यूपीएससी एग्जाम देने तक रखना चाहिए आपको नोट्स हो। एंड डिसाइड व्हेन डू यू वांट टू टेक अप द यूपीएससी एग्जाम। अभी से आप लोग प्लान करो कि आप लोग यूपीएससी एग्जाम देने के लिए कितना टाइम बाकी है। जैसा कि अगर आप क्लास 10th में अब
यूपीएससी एग्जाम देने के लिए कितने साल बाकी हैं? आपके 10th जो है अभी पास हो रहे हैं अभी है, उसके बाद में इंटरमीडिएट के 2 साल रहेंगे, उसके बाद में ग्रेजुएशन के कम से कम 3 साल से 5 साल रहेंगे, तो तकरीबन 7 साल का टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो आप इतने सालों में आप जो है यूपीएससी की ट्रेनिंग और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं आप अलॉन्ग विथ योर एजुकेशन। जिस तरह जो है आप इंटरमीडिएट में जो है एमसेट वगैरह पास करने के साथ में पढ़ते हैं, उसी तरह यूपीएससी की तैयारी भी अभी से कर सकते हैं आप लोग। एंड इंशाल्लाह आप लोग जो है जब फाइनल ईयर में रहेंगे आप लोग तैयार रहते हैं एग्जाम देने के लिए। तो डिसाइड when do you want to plan take up UPSC test, collect the details of the syllabus and divide the syllabus for the education of timetable and make habit of putting time for study on a daily and weekly basis. Follow इसके बुक्स अवेलेबल है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आपको पढ़ना है और इसके बारे में कई चीजें आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाती है क्या क्या पढ़ने का है। एंड वॉच द वीडियोस ऑफ IAS टॉपर्स एंड देयर एडवाइसेस ऑन द यूट्यूब में जाके अगर आप लिखे कि IAS टॉपर्स बोले तो उनकी एडवाइसेस और उनके जो मशवरे आप लोगों को मिलते हैं, जो IAS करना चाहते हैं वो जाके रोज सुनते रहना चाहिए। रोज एक आदमी को सुनिए आप लोगों को मालूम होता है कि IAS के लिए किस तरह प्रिपेयर करने का। तो ये बात इंस्टीट्यूट्स हैं जो IAS की कोचिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं आजकल, बहुत ऑनलाइन मिल रहा है हर चीज जाने की जरूरत नहीं है। तो कई चीजें अवेलेबल है आजकल फ्री में। तो इफ यू डिसाइड टू चेंज दैट बिकम्स योर फेट। आज आप लोग अगर डिसाइड करें कि हमको बदलना है, हमको जो है कुछ आगे बढ़ना है, तो इंशाल्लाह आज से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाह रहे बच्चों? हाथ उठा के बताइए। कितने लोग आप लोग अपनी जिंदगी करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक ये देखिए, ये एक वेबसाइट है फ्री एकेडमी बोल के एक वेबसाइट है, ये जो है नूरुल हसन IPS ने बनाया। इस पे ये अगर साइट पे गए तो जो भी पढ़ने का आपको यूपीएससी के लिए वो सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है इसमें वेबसाइट पे। तो आप लोग जाके जो है इसके मालूमात ले सकते हैं। इसके बारे में और चीजें मालूम होना है तो आप जो है बशीर साहब से हमको कांटेक्ट कीजिए, हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी तरह इसके रहनुमाई करेंगे। तो यू कैन, अक्सर बोलते हैं कि हमारी जो हाथ की लकीरें हैं इसकी वजह से हमारी किस्मत बनी हुई है। ऐसा नहीं है बच्चों, करता है तो अल्लाह से दुआ करता उसकी किस्मत बदलती है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। योर डिसीजन टुडे डिटरमिन्स योर फ्यूचर। आज जो आप लोग डिसाइड करते हैं यही आपका फ्यूचर होगा। इट इज इन योर हैंड्स। whatever you decide and follow it consistently, it will change your life. Don't believe that we are in this life because of our fate. अक्सर क्या बोलते हैं कि मैं इस हालत में हूँ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। नहीं है बच्चों, ये जो है हार्ड वर्क और प्रेयर से, अल्लाह से दुआ करते रहे तो आपकी किस्मत बदलती है। नेपोलियन हिल एक फेमस राइटर है, उसने क्या कहा मालूम है? Whatever a man's mind can conceive and believe, it can achieve it. बच्चों इसमें से कोई पढ़ के सुना सकते हैं इसको? Whatever a man's mind can conceive and believe, it can achieve. समझ गए ना? समझ में आया? Okay, good. Let's start. Today I like you to write down. आप जो है आज के लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं। आज एक पेपर पे आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है? What you want to become in life. पेपर पे आप लोग ये लिखिए, What you want to become in life. हर बच्चा ये लिखिए आज पेपर में लिख के आप जो है अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को बताइए What you want to become in life. How much you want to earn per month, or how much useful you want to become for yourself, your parents and community and nation. ये भी आप लिखिए। ये आज आप के रखें तो ये आपकी जिंदगी का मकसद बन जाएगा और इस पे अगर काम करें तो आप लोग दुनिया में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। प्लीज गिव फीडबैक। तो फीडबैक फॉर्म आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को फिलअप करके दीजिए। और ये जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस है, इसको आप अप्लाई, आप लोग जो कुछ अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ पे फोन करके मुझे मालूम कर सकते हैं आप लोग। Okay, right. Thank you very much. Bashir sir. Thank you very much, sir. It was very good presentation. Children, हमारा सिविल सर्विस एकेडमी का मकसद यही है कि ज्यादातर बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को कलेक्टर्स बनाए, IPS ऑफिसर्स बनाए, IAS ऑफिसर्स बनाए। एक मोटा हिसाब है बेटा, क्योंकि मेरी बेटी भी डॉक्टर है। आजकल के जमाने में डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप कोई फ्री सीट भी अगर आ गई नीट के जरिए तो तकरीबन सालाना 1.5 लाख रुपए आपको देना ही है, जिसको हम फ्री सीट बोलते हैं। तो आजकल पढ़ना भी कोई मामूली बात नहीं है बेटा, करोड़ों का पैसा देना पड़ रहा है वहां पे एक डिग्री हासिल करने के लिए। पैसे देते डिग्री देंगे क्या? नहीं, उसके लिए भी आपको रात एक दिन 5-6 साल मेहनत करना है। इतनी मोटे मोटे बुक्स रहते हैं, वो पढ़ना है। MBBS डिग्री हासिल करने के बाद आपकी तनख्वाह कितनी रहती? मतलब 5-6 साल आप पढ़े, MBBS हो गया, डॉक्टरी करे, आप लाखों का पैसा दिए डोनेशन में,
तब जाके आपकी तनख्वाह जो है ना 40-50 हजार रुपये है। वो नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता जब जब डे शिफ्ट में काम करता। हमारा मकसद क्या है यहाँ आपके पास आने का, आपको आईएएस बनाने का है। सर जो बतला रहे थे, अगर आप अभी से पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज के बुक्स पढ़ेंगे, मेंटल एबिलिटी के बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, डेली जो भी करंट अफेयर्स के जो बुक्स पढ़ेंगे, आप इसके साथ साथ आपका एजुकेशन तो चलता रहेगा, इसके साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए भी अगर निकालेंगे, अब इंटरमीडिएट 2 साल हो जाएंगे, ग्रेजुएशन 3 साल हो जाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली आप यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लिख सकते हैं। अगर उसमें पास हो जाए तो आप कलेक्टर बन सकते हैं। आपको 5 पैसे में डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपकी तनख्वाह मिनिमम स्टार्टिंग 2.5 लाख से 3 लाख से स्टार्ट हो जाए। आप एक महारानी बनकर, क्वीन बनकर, एक डिस्ट्रिक्ट की महारानी, यू आर द क्वीन ऑफ ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। आपके लिए एक ड्राइवर रहेगा, काम वाली रहेंगे, कुक रहेगा, उठना बैठना, कलेक्टर का बंगला अलग रहेगा वहां। आप अपनी जिंदगी तो आप बदल लेंगे, साथ में आप रोल मॉडल बनेंगे। आप कई बच्चों को, आसपास के कई गांव वालों को, कई एरिया वालों को कि अरे फलाने गांव की लड़की या नहीं तो फिर हमारे मोहल्ले की लड़की जना कलेक्टर बन गई है, एक रोल मॉडल बनेंगे आप। और खुदा ना खास्ता फ्यूचर में कुछ कोई मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जब आप दिल्ली पहुंचेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनकर, इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल रेज योर वॉइस, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर डूइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर आल्सो इंडियन, आई एम आल्सो इंडियन। तो तब क्या होता है, लोग पीछे हटेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अगर कोई षड्यंत्र भी रच रहा है तो पीछे हटेंगे कि नहीं यार, ऐसे खून में भी पढ़े लिखे हैं। हमारा मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाए। ये फ्री ऑफ कास्ट है, जिसके लिए सिर्फ मेहनत करना है। आप जब आप कलेक्टर बनोगे ना, माँ बाप को अपने बंगले में बुलाएंगे, आप ऑफिस में बुलाएंगे, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आपको जो सैल्यूट करेंगे, सचमुच में वो दिन जो है ना आपके माँ बाप के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन। हमारी तकलीफ भी आप समझिए। आप कई बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा ये प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, कई बच्चे अटेंड भी नहीं कर रहे। बहुत तकलीफ की बात है बेटा, जो आप अटेंड करें, आप मोटिवेट करो दूसरों को, उनके अंदर जज्बा पैदा करो आप कि भाई अपने लोग जो है, वहां के सऊदी के लोगों को क्या तकलीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेटल्ड। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चों में अवेयरनेस नहीं है। कलेक्टर क्यों नहीं बनना चाहता, बोलता कि मैं डॉक्टर बन, बोलता कि मैं इंजीनियर बन। डॉक्टर बनना आसान है? आसान नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल दुनिया अलग है। यस, अगर आप आईएएस बनना चाह रहे तो यस यू कैन बिकम, क्योंकि वहां कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। इंशाल्लाह मैं सीएससी की तरफ से मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि आप में से जितने नीलोफर के स्कूल के बच्चे हैं, ग्रीन वैली के स्कूल के बच्चे हैं, सब में से कम वहां से एक 5, यहाँ से एक 5 आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, आईएफएस ऑफिसर्स बने इंडियन फॉरेन सर्विस में। 800 आईएफएस ऑफिसर्स अगर है ना बेटा पूरे इंडिया में, उसमें सिर्फ एक मुसलमान आपको मिलेगा। एक समंदर है अपने को अपॉर्चुनिटीज का, आप जाते ही नहीं वहां, आप जाते ही नहीं वहां पे। कई स्कूलों में, कॉलेजों में देखिए हम इतने अच्छे वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक स्पीकर्स को ला रहे हैं, बच्चे दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। 43% ऑफ द मुस्लिम दे नेवर एंटर इनटू द स्कूल कैंपसेस। उनको लेना देना है ही नहीं। अरे पढ़ाई वो हमारे बस की बात नहीं है। क्या करने का है, होटलों में काम करने का है, ऑटो चलाने का है, अपने को तरकारी की दुकान चलाने का है, दूध की दुकान चलाने का है, दही की दुकान चलाने का है। यही अपनी जिंदगी है। क्या कब तक अपन ऐसा लेके चलेंगे, बोलिए आप? इनको चेंज करना है। आप कलेक्टर बनोगे ना, एक नई पॉलिसी लाएंगे आप, एक नई पॉलिसी लाकर, नहीं एक नया रूल है। देखिए आप बेगर्स, आप 22% बेगर्स बोल रहे हैं सर, 25% जेलों में है अपने लोग बोल रहे हैं। कौन चेंज करेगा? आप ही चेंज कर सकते। ये हथियार उठा के लड़ने से नहीं, रोडों पे आके करने से नहीं, अपने दिमाग से वहां तक पहुंचना है। कुछ गलत हो रहा तो यस दिस इज रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन, इट शुड बी लाइक दिस बोल के आप आवाज उठाना है। आपसे बस यही दुआ है कि बेटा आज से तुम जो है ना 2 घंटे जनरल नॉलेज के लिए निकालो, करंट अफेयर्स के लिए निकालो, सर जैसा बोले पेपर्स पढ़ने के लिए निकालो, न्यूज सेशन सुनो कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे।
डेली सब्जेक्ट के साथ साथ ये निकल, यही बस है, ये इन्वेस्टमेंट ही है आपका। जो 80 लाख बोला ना मैं एमबीबीएस सीट के लिए, यही जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी मेहनत ही आपकी इन्वेस्टमेंट है। 80 लाख देने के बावजूद भी उनकी तनख्वाह 5-6 साल मेहनत करने के बाद 40,000 रुपए रहती है। आपका एक ही शॉट में जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आपकी तनख्वाह 3 लाख से स्टार्ट हो जाती है। और क्या चाहिए बेटा, इतना बड़ा तोहफा और कौन दे सकता है अपने औलाद को आपके सिवा। Please work on it. I wish you all the best. I'll pray for your bright future, and I am praying the Almighty Allah, the Creator, to provide good knowledge to you, so that at least two IAS, IPS officers should come from both the schools, Nilofar High School, Nampally, and as well as Green Valley High School, Karwan. Ladies and gentlemen, my dear students, now the time has come to raise your hand. आप अपना, thank you sir. The time has come to raise your hand. Honorable President is there. He will answer you. सर ने खुद सोच समझ कर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, तो उन्होंने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सोचा होगा कि मुसलमान यूथ के लिए मुझे कुछ करना है बोलकर, इनका थाट है जो हम अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज सईद साहब हमारे बीच में है। आप बिना झिझक के, बिना सोचे, जो भी आपके दिमाग में है आप पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग मैम, Afrin ma'am and Fatima ma'am also, if you have, yes, see this very beautiful quote. This, any doubts, any questions, please go ahead. आप लोग जरा ये, yes sir, जरा पढ़ लीजिए कोटेशन जरा पढ़िए। He who asks is a fool for 5 minutes, but he who does not ask remain a fool forever. आपके दिमाग में, दिल में कुछ भी आ रहा होगा ना बेटा, क्वेश्चन आप पूछिए, उठ के शर्माइए मत। कितना अच्छा कोटेशन है, देखिए। अगर आगे पीछे देखेंगे, अगर मैं क्वेश्चन करूंगी, उठूंगी सबके सामने, लोग मुझ पे हंसेंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं ना, जो नहीं पूछ कर बैठे हुए हैं और बाद में पूरी दुनिया उसके साथ, उसके ऊपर पूरी जिंदगी हंसते रहे। सो प्लीज डोंट हेजिटेट, डोंट थिंक दैट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। एटलीस्ट कोई अकेली लड़की तो पूछ सकती है ना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछ सकती है। खाली बैठने से नहीं होता बेटा। जैसा कि अब सर बता रहे थे, अगर कलेक्टर भी तुम बनना चाह रहे हो ना, जैसा कि मेन प्रीलिम्स एग्जाम एक रहता, वो पास होना है आपको, बाद में मेंस रहता, वो पास होना है आपको, बाद में फाइनल आपको डिसाइड करने वाला इंटरव्यू है। इंटरव्यू का मतलब क्या है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ओके, वेरी गुड। What is your name? I'm so and so. What do you know about this? Okay sir. आपका कॉन्फिडेंस इसमें दिखेगा ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें दिखेंगे ना। खाली मैं ऐसे बैठते रहता हूँ, उन्हें क्या समझते हैं, क्या कुछ भी नहीं, यू आर फेल। हाँ, गो बोलता हूँ। आप इंटरव्यू मुंह ही नहीं खोल रहे, आप खाली बैठे स्टैचू बनकर, तो हाउ दे विल पास यू? माइक का प्रॉब्लम है क्या बेटा वहां पे? अगर माइक का प्रॉब्लम है तो इससे पहले जैसा आप आकर बात कर रहे थे ना, तो ऐसा आकर बात करो मैम। आई कैन अंडरस्टैंड यू, डोंट वरी। I am Hajira Fatima from 10th class, and Yes. I want to ask a question. Yes. I want to become an IAS. So, what is the process for it? Please. After SSC, there are courses, sir, MPC, BPC, CEC. So which course I supposed to take to become IAS officer? That is our question. Please answer her, sir. Okay, बच्चों, एक्चुअली क्वेश्चन इज वेरी गुड, एक्चुअली वेरी रिलेवेंट। इसका मैं जवाब दे चुका, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बताया आपको, यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? यू शुड 21 इयर्स एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड। आप जो है बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यू शुड बी ग्रेजुएट or you should be in the final year of graduation. That is the qualification for UP. सर यही बोलना चाह रहे, 10th के बाद आप कोई भी कोर्स में जाइए, आप एमपीसी में जाइए, बीपीसी में जाइए, एचईसी में जाइए, सीईसी में जाइए, उसके बाद सीईसी किया आप तो क्या बन सकते हैं? आप बी काम करते, ग्रेजुएशन में बीए बीपीसी करे तो बीएससी कर सकते, ना तो नीट लिख सकते, एमपीसी करे, चाहे जो भी कोर्स आप कर रहे हो ना, एनी कोर्स यू कैन डू। उसके बाद आप क्या करेंगे? 2 साल इंटरमीडिएट हो गया आपका, 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे आप। 3 साल के बाद आप यूपीएससी एग्जाम लिखकर कलेक्टर बन सकते हैं।
आप ये इंटरमीडिएट में है ना, अपने पास जो कोर्सेस रहते सीईसी, एमपीसी, बाईपीसी, एचईसी जो भी है ना, एमएससी, वो कुछ भी कर सकते, ग्रेजुएशन कुछ भी कर सकते, एक इवन इंजीनियरिंग भी कर सकते, आप तो मेडिकल भी कर सकते, वो डिग्री भी रहना आपके पास। एक फर्स्ट थिंग, आपकी उम्र तब तक 21 ईयर्स होना है। 21 ईयर्स नहीं, मैं अभी करेक्टर बनती हूँ, मैं 10th के बाद बोले तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। यू कैन कंप्लीट एनी ग्रेजुएशन, you can show the graduation degree to the UPSC examination, and by that time your age should be minimum 21 years. You are eligible to write the UPSC examination. Clear? Okay, fine. Next question, please. Next question. सर सिविल्स के लिए कितने साल प्रिपेयर करना? सिविल्स एग्जाम्स के लिए कितने साल प्रिपेयर होना, यही क्वेश्चन है ना बेटा आपका? यस सर। ओके, बैठिए सर। बच्चों, अभी आप लोगों को जिस तरह बताया गया है कि इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, 21 ईयर्स ऑफ एज एंड यू शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। जैसा कि आप लोग हैं अभी आप लोग अगर स्कूल में क्लास 10th में अगर हैं तो यू हैव 2 इयर्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड मिनिमम 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी 5 साल हो जाएंगे। अगर आप बीकॉम, बीएससी और उसकी जगह इंजीनियरिंग या मेडिसिन करते हैं तो 5-5.5 साल मिलेंगे आपको। तो तकरीबन 7 to 9 years आर अवेलेबल फॉर यू फॉर स्टडीज। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो जो है, आप ग्रेजुएशन होना है तो इतने साल आपके पास अवेलेबल हैं, तो यू कैन प्रिपेयर अलॉन्ग विथ योर स्टडीज। आपके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। इज दैट ओके? Okay, fine. Yes, sir. Fine. Okay, thank you very much. And I think the time, the exactly time we are supposed to, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है तो हम टाइम का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं इंशाल्लाह। So question and answer session is over. Raise your hand session. Now we are winding up to the last session of the program, that is vote of thanks. I request Miss Salma Begum of High School to present the vote of thanks. Over to Miss Salma Begum, please. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks on the program of the association's meeting in our school. On behalf of my school and the entire management group, a great thanks to Mr. Muhammad Bashir Ahmad sir, Mr. Abdul Qadir sir, Mr. Samir Ahmad sir, Mr. Muhammad Saeeduddin sir for joining us. I am very heartily gratitude to all the speakers of sharing their grateful words and valuable suggestions with us in today's meeting. Thanks to joining with us from a long distance for support and cooperations. It's a good to see you all on the Zoom meeting, sir. The meeting is very great, sir. I really appreciate the time you spent with us today. I hope it was a time well spent for you too. We learn more about it and we truly appreciate all your advices and thoughts. It is very inspirational and motivational to our students to become an IAS, IPS, IFS and UPSC officer, sir. At last, I want to share the thought with you all. That is, success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. Dreams comes true, they definitely do. When you are desperate, restless, and zealous enough, never think you are not good enough. Never settle for what you never wanted. Be positive to victories and failures, and life will surprise you all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Salma Begum. On behalf of Civil Service Academy, before we say goodbye, I, General Manager Bashir Ahmad, express gratitude to the principals of the both schools, Nilofar High School, Nampally, and as well as the Green Valley High School, Karwan. Special thanks to Engineer Saeeduddin Saab, who has, of course, he was very busy, but still, as a president, I forced him. Is the responsibility to control the program and all. So he joined and presented the main presentation in very well manner. Before we wind up the program, let me read the lines of Rabindranath Tagore. After this, we'll say goodbye. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free,
where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by tea into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country away. Amin. Goodbye. Take care. Jazakallah.